Good morning, all. Good morning, Prathamesh. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Shall we start? 53 students, 14. Ma'am, wait for 5 minutes. More will come. Why joining late? But will 1 minute will wait. Okay. All of you have submitted their enrollment form. Yes, ma'am. Yes, ma'am. University enrollment form. All of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. From next Monday, we are starting the practicals. Okay, today or by because timetable is ready. We'll share the timetable with you. 4 hours timetable is there. 11:30 to 3:30. No recess will be there. It's okay. So while coming to the college, you have to take care of this thing. All related information will be given by class teacher again. Okay. So next Monday it is A and C divisions, means your division is on next Monday, 22nd Feb. Okay. So let's start. In the yesterday's lecture, I have repeated all the previous part of what that composite function. All doubts we have cleared in the yesterday's session. Okay. Today we are going to start with the new part, and that is the most important. Mostly or surely you are getting 8 marks question from this part. Okay. So let me share. I think now no one is going to join. 58 students. Okay. Everyone can see. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this is a homogeneous function. Before starting the homogeneous function start करने के पहले, can anyone tell me what do you mean by homogeneous function? Can anyone? कोई बताएगा मुझे what is a homogeneous function? Homogeneous function का meaning क्या होता है? No, ma'am. No. Homogeneous function means what? जब हम कोई function लिखते, for example, y is equal to, suppose I am writing. फंक्शन का डिग्री n रहेगा ना? Yes, function का होता है, that is the same. Means अगर मैं इस type का function लिखती हूँ, for example, suppose I am. मैम आप सॉल्व करने के पहले एक बार बता दीजिए स्टेप. हाँ, yes. अगर मैं ये लिखती हूँ y is equal to, और instead of y will take z is equal to xy, ठीक है, प्लस x स्क्वेयर. हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम. इधर बताओ, फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? फर्स्ट 2. सेकंड टर्म की भी डिग्री क्या हो गई? 2. सो दैट्स वाई. और अगर मैं y स्क्वायर लिखती हूँ तो ईच टर्म, हर एक टर्म की डिग्री क्या हो गई? 2. Then this type of the function is called a homogeneous function. Clear? हर एक टर्म की. अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि x प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये होमोजीनियस होगा क्या? No, ma'am. नो. बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है या 1 है और 2 है. So this type of the function is, this is not homogeneous function and this is a homogeneous function. Actually ये नहीं करना है हमें, but homogeneous function के लिए हम हमारा पार्ट यूलर्स थ्योरम है, and that's why हम क्या करने वाले हैं अभी? homogeneous function के लिए यूलर्स थ्योरम and its corollaries we are going to solve. That's why homogeneous function means what? Each term degree is same. हर एक term की डिग्री क्या रहेगी? सेम.
दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। अगर मुझे प्रूव करना है अभी, ये तो हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया। बिफोर गोइंग फॉर यूलर्स थ्योरम, अभी मेरे को फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एनी फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अभी इस फंक्शन को मैं डिनोट करती हूँ एफ ऑफ एक्स वाई से, बिकॉज क्यों, ये समझ में आया ना, वाई एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। अभी मैं इसी फंक्शन में क्या करती हूँ, इस x की जगह पे कैपिटल XT लिखने वाली हूँ, ठीक है। और आई एम गोइंग टू राइट इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, मैं अगर लिखती हूँ कि कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल XT, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल YT। इसका मीनिंग क्या है, हर एक एग्जाम्पल में, हर एक फंक्शन में, अगर मैं ये स्मॉल XY हो गया, अगर मैं इस x को xt से रिप्लेस करती हूँ तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे करना है, ठीक है। क्या किया, स्मॉल x को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, स्मॉल y को रिप्लेस किया वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड ये दूसरा वेरिएबल लो ना, कंफ्यूज होता है वो x और स्मॉल x में। नहीं, अभी हमें यही नोटेशन यूज करना है, कैपिटल X इज इक्वल टू दिस XT, बिकॉज ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अभी कुछ करना नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ समझ लो, फिर ये कुछ वेरिएबल, ये नोटेशन हम एग्जाम्पल में ये सिंपल वे से करेंगे। और बट एवरी टाइम ना क्यों ले रही हो, देखो दिस इज द डेफिनेशन, ये देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। उसी होमोजेनियस फंक्शन को हम अलग वे से अभी डिफाइन करने वाले, कैसे कि इफ बाय पुटिंग x is equal to xt, capital Y is equal to yt, capital Z is equal to zt, the function becomes f of capital X Y Z is equal to t raised to n f of x y z। ये t raised to n क्या है, f of x y z क्या है, ये capital X Y Z क्या है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये समझ में आएगा, देखो फिर से लिखते हैं नए तरीके से, ठीक है। दूसरा फंक्शन लेते हैं, सपोज मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू, मैं अभी लेती हूँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन लिया, अभी ये फंक्शन, ये मेरा एफ ऑफ क्या हो गया, स्मॉल एक्स वाई, बिकॉज स्मॉल एक्स वाई इसमें। अभी जस्ट सिंपली डेफिनेशन का पार्ट लिखते हो तो हम लिखेंगे एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई टी। करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ सिंपली याद रखो, इस फंक्शन को मैं कैपिटल एक्स वाई के फंक्शन में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो इसी फंक्शन में को मैं कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर x को मैं एक्स टी से रिप्लेस करती हूँ, y को वाई टी से रिप्लेस करती हूँ, आप राइट हैंड साइड याद रखो, वाई स्क्वायर को क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, एग्री, ठीक है। अभी कॉमन क्या आएगा, YT नहीं, टी स्क्वायर, ठीक है। YT नहीं लेना है, हमें t का ही टर्म कॉमन लेना है, टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एग्री, समझ में आ रहा है। x को xt से रिप्लेस किया, y को yt से रिप्लेस किया, इस y को भी yt से किया, तो y स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, होगा ना। फिर ये टी स्क्वायर, ये टी इंटू टी स्क्वायर को बाहर ले लिया, टी की टर्म बाहर लेनी है, टी की ही टर्म बाहर लेनी है, तो मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर इंटू ये जो हो गया, इज इट एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। और मैं राइट, अगर इस टाइप में आता है तो अभी हम इस डिग्री के डेफिनेशन में डिफाइन करने वाले हैं होमोजेनियस फंक्शन की, दिया हुआ फंक्शन अगर t रेस टू n f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में अगर आता है तो दैट बिकम्स होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ कि z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, डिग्री व्हाट t। तो जो भी अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हर एक एग्जाम्पल में क्या करना है, दिए हुए एग्जाम्पल में, दिए हुए फंक्शन में
स्मॉल x को xt से रिप्लेस करो, स्मॉल y को yt से रिप्लेस करो, t की टर्म पूरी कॉमन ले लो एंड t की टर्म कॉमन लेने के बाद अगर जो ब्रैकेट रहती है वो अगर ये दिया हुआ फंक्शन रहेगा तो ही वो क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन, अदरवाइज नॉट। मीन्स हर एक फंक्शन को अगर मैं f ऑफ कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई मीन्स गिवन फंक्शन, एक्सप्रेस कर सकती हूँ तो ही वो होमोजेनियस फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर लेते हो तो वो होमोजेनियस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। हमने ऊपर एक की डिग्री 1 है और एक की 2 है। नहीं आएगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं आएगा? ये देखो, ये कैसे डिग्री एक की 1 है और एक की 2 है। और ये हो जाए x को xt से रिप्लेस करो, किसी को ऐड करना है, एक मिनट, ओके। इसीलिए तो पहले बताया कि हर एक की डिग्री सेम रहेगी ना तभी वो कॉमन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई नहीं, यहाँ पे ना मैं वो ऊपर साइड बोल, हाँ यस, हाँ x इज इक्वल x प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 1 है, करेक्ट। x को xt से रिप्लेस कर दिया, y को yt से रिप्लेस किया तो ये हो गया y स्क्वायर t स्क्वायर। पूरी टर्म की अगर मैं यहाँ से t की टर्म लेती हूँ तो एक ही t कॉमन आता है, ब्रैकेट में क्या आता है x प्लस वाई स्क्वायर t रिमेनिंग है। अभी ये वाला और ये सेम आया क्या? ये गिवन फंक्शन था, ये गिवन फंक्शन था, ये और ये ब्रैकेट सेम नहीं आई। डिग्री 1 नहीं बोल सकते हम। दिस इज नॉट इक्वल टू t रेज टू n स्मॉल f ऑफ एक्स वाई। स्मॉल f ऑफ एक्स वाई का मीनिंग है गिवन फंक्शन, कैपिटल एक्स वाई का मीनिंग है क्योंकि कैपिटल एक्स वाई दिस इज अ नोटेशन फॉर्म, इसमें कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, xt को कैपिटल एक्स बोल रहे हैं और वाई स्क्वायर टी स्क्वायर को कैपिटल है। दिस इज नॉट इन दिस फॉर्म। समझ में आया क्या ये बात? आर यू गेटिंग दिस? फिर से देखो, पहला फंक्शन था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमने क्या किया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, ये हर एक एग्जाम्पल में लिखना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है कैपिटल एक्स वाई। बट करना क्या है, और एवरी एक्स एंड वाई को एक्स टी वाई टी से रिप्लेस करो, पूरी टी की टर्म बाहर ले लो। पूरी टी की टर्म बाहर आने के बाद अगर ब्रैकेट में जो टर्म बचती है अगर वो इट इज गिवन फंक्शन से इक्वल आई, ये देखो इक्वल है ना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई, इसका मीनिंग हो गया कि एफ ऑफ कैपिटल एक्स वाई इज टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में गिवन फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आया तो वो हो गया होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, n मीन्स t का पावर डिग्री 2। क्लियर दिस? y डिग्री इज 2। ये समझ में आया क्या एवरीवन? यस मैम, यस मैम। एवरीवन ओके। अब इस सेम एग्जांपल थोड़ा अलग करके लिया मैंने, एक्स वाई की जगह पे x लिखा, x प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए वो पहले वाला होमोजेनियस फंक्शन का मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया था कि डिग्री सेम चाहिए होमोजेनियस, डिग्री सेम नहीं है तो होमोजेनियस नहीं होगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है बट थोड़ा अलग तरीके से हम डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या किया, x प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैंने इसको कैपिटल एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया। कैपिटल एक्स वाई इज नथिंग बट व्हाट, x को xt से रिप्लेस किया, y को yt से किया, बट एक ही t बाहर आ रहा है क्योंकि x के साथ एक ही t था, यहाँ का एक t बचता है तो ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस वाई स्क्वायर t। अभी ये दिया हुआ फंक्शन तो इस टाइप में नहीं है ना, यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर आता तो होमोजेनियस होता, बट ब्रैकेट के अंदर t आ गया तो डेफिनेटली इट इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। हम इस फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं करते, डिग्री इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ n, दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉट होमोजेनियस फंक्शन। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल करके लिख के दिखाया। एनी डाउट हियर? तो हर एक एग्जांपल में आप डिग्री फाइंड आउट कर सकोगे क्या? ऐसे भी नहीं है ये लिखना जरूरी है। अगर आपको फंक्शन को देखते हुए समझ में आता है वो होमोजेनियस है या नहीं
तो डायरेक्टली यू कैन राइट द होमोजेनियस, है या नहीं? नहीं तो फिर ये करके दिखाना है। और एक दिखाओ, मुझे बताओ, अगर मैं लेती हूँ z इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, इज इट अ होमोजेनियस फंक्शन? Yes, ma'am. हाउ? X और Y का Sin. सेम है। इसको x t लिखूंगी, इसको y t लिखूंगी, करेक्ट? बट जब t बाहर, कहाँ पे आएगा t? t कहाँ पे आएगा? t तो यहाँ पे आएगा ना, इस ब्रैकेट का t। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? x को x या y को यस मैम। ब्रैकेट t बाहर आएगा तो ये t यहाँ पे आ सकता है क्या? नो मैम। नो। नो फिर ये दिस वन एंड दिस वन सेम है क्या? नो नो मैम। एवरी टाइम टी हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। समझ में आया? इस टाइप में आता तो वो होमोजीनियस होता, इस टाइप में आया तो ये होमोजीनियस नहीं, ये होमोजीनियस नहीं। समझ में आया क्यों होमोजीनियस नहीं है? बट सेम फंक्शन से समझ में आया नहीं है? x प्लस वाई, every sine, cos, tan, inverse function are homogeneous only when t gets cancelled. जब इस ब्रैकेट का t कैंसिल होगा ना तभी वो होमोजेनियस रहेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, बिकॉज ये एंगल में जाता है ना। बट अगर समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, साइन x प्लस वाई में x को xt से y को yt से, तो ये t इधर आएगा बाहर, ये t यहाँ पे रिप्लेस नहीं होता है, एंड ये और ये सेम नहीं है दिया हुआ फंक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट होमोजेनियस। मींस ये फंक्शन हम इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर रहे, नहीं करने आ रहा है ना, साइन x प्लस वाई, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। बट सेम फंक्शन अगर मैं लिखती हूँ साइन x बाय वाई तो वो होमोजेनियस होगा क्या? यस मैम। Yes. Correct. Understood क्यों? टी क्या कैंसिल हो हो जाएगा। जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन की हो जाएगा। फिर फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो, करेक्ट। हम yt लिख सकते हैं ना, तो ये tt कैंसिल होगा, तो ये सेम फंक्शन आ रहा है, ये देखो साइन x बाय वाई, वो दिया हुआ फंक्शन है, बट t चाहिए, t चाहिए, तो मैं यहाँ पे t नहीं है तो मैं t लिख सकती हूँ t रेज टू जीरो, बिकॉज t रेज टू जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। 1, तो t रेज टू जीरो इज 1, देयरफॉर एवरी टर्म के आगे आप t रेज टू जीरो लिख सकते हो, जहां पे t कैंसिल होता है उस सभी फंक्शन की डिग्री क्या आएगी? क्या आएगी? जीरो, बिकॉज एवरी टाइम आई कैन राइट, मैं इसके पहले t रेज टू जीरो लिख सकती हूँ, तो ये हो गया आपका t रेज टू जीरो, और ये जो है आपका दिया हुआ फंक्शन है, मीन्स ये हो गया आपका f ऑफ स्मॉल एक्स वाई। Therefore, this is a homogeneous function of a degree what? 0. Correct? Is it correct? तो sin, cos, tan, cosec, cot, है ना, सब में आपका t ब्रैकेट में इधर का t इधर नहीं ले सकते हैं, ये t इस ब्रैकेट पे कैंसिल हो जाना चाहिए। सिमिलरली लॉग में भी वही आएगा। ओके, तो ये पहले का एक्सप्लेनेशन है कि होमोजेनियस फंक्शन मींस व्हाट, होमोजेनियस कैसे प्रूव करना है, डिग्री आती है तो होमोजेनियस आएगा, अदरवाइज नहीं। अभी हम एक्चुअल पार्ट के लिए जा रहे हैं, ये वही डेफिनेशन थी कि f of capital XYZ is equal to t raised to n f of XYZ. So got this function of homogeneous function प्रूव करना है। देखो इस टाइप का नहीं, क्या हमें एग्जाम्पल में करना है, ये प्रूफ है एक्चुअली, एवरी एग्जाम्पल में ये प्रूव कर रहे हैं। ये देखो एवरी एग्जाम्पल में दिए हुए टर्म को xt yt से रिप्लेस करना है, वो कैंसिल होता है तो होमोजेनियस आएगा, एंड डायरेक्ट आंसर आता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट यही है, xt yt यही है, और डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम का यूज करके एंड कॉरोलरी का यूज करके आपको आंसर्स मिलेंगे। इसलिए वो पार्ट, इस पार्ट में किसी को डाउट है, कैन यू टेल मी नाउ? नो।
को समझ में आया डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है? टी यस लेना है, यस टी कॉमन लेने के बाद जो आता है वो दिया हुआ फंक्शन आना चाहिए, तो ही ठीक है। आपका वो मैम homogeneous- साइन वाला जरा एक बार फिर से दिखाओ ना। हाँ, मैम एक समझ मिनट, गया, आगे चलो। रुको रुको रुको। हाँ, ये दिस वन, ये ऊपर वाला हाँ पहला यस मैम। ऊपर। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई तुम्हारा फंक्शन था। ओके, हमारा जो फंक्शन था वो था साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, हर एक स्टेप पे देखो। फिर हमने क्या किया, एक्स को एक्स टी से रिप्लेस किया, वाई को वाई टी से रिप्लेस किया। करेक्ट, इसी Yes, स्टेप पे पूछो अगर नहीं समझ। ठीक है, फिर हमने इस ब्रैकेट से क्या कॉमन लिया, टी। बट जब इस ब्रैकेट से टी कॉमन आता है तो ब्रैकेट के पहले ही आएगा, साइन के पहले नहीं आएगा, है ना, साइन के पहले नहीं आएगा। ब्रैकेट से टी कॉमन है तो ब्रैकेट के पहले वो साइन के साथ आ रहा है, साइन टी एक्स प्लस वाई। अभी इसको ऑब्जर्व करो, साइन टी एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ फंक्शन था क्या? नो मैम। नहीं, सिर्फ क्या आना चाहिए था, साइन एक्स प्लस वाई। देयरफॉर ये इस फॉर्म में नहीं आया, टी रेज टू एन साइन एक्स प्लस वाई, है ना। समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा है, नॉट इक्वल टू टी रेज टू। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर, ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। बट अभी सेम एग्जांपल x प्लस वाई की जगह पे x बाय वाई लिखती हूँ, x बाय वाई। तो x को xt से रिप्लेस किया, y को yt से, tt कैंसिल हो गया, तो साइन x बाय वाई और ये साइन x बाय वाई, इज इट सेम? दोनों फंक्शन सेम आया, आया क्या सेम? यस मैम। यस, बट फिर t को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि डिग्री चाहिए। अभी t नहीं है तो मैं t रेज टू 0 लिख सकती हूँ एवरीवेयर, बिकॉज हमें इंडाइसेस का रूल पता है, a रेज टू 0 इज व्हाट 1। तो मैंने t को लिख दिया t रेज टू 0, तो ये आ गया आपका t रेज टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। क्यों लिखा? बिकॉज सेम फंक्शन आया है दिया हुआ, ये आपका स्मॉल एक्स वाई है एफ ऑफ। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आपका हो गया होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट 0। ये जो पावर रहता है दैट इज डिग्री ऑफ द फंक्शन। करेक्ट, समझ में आया अभी? हाँ यस मैम। ओके, ये फिर से क्लियर होगा आपके किसमें, एग्जांपल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज द यूलर्स थ्योरम। सी हियर आई हैव रिटन यूलर्स थ्योरम। एग्जाम में आता है 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल का, डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। यूलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल्स, ये प्रूफ आता है। स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम, hence solve, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम एंड hence solve। hence solve का मीनिंग क्या होता है कि वही रिजल्ट जो आपने प्रूव किया है उसका यूज करके एग्जांपल सॉल्व करना है। क्लियर, अब व्हाट इज द थ्योरम सेड, if u is a homogeneous function of 2 variables x and y of degree n, then x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equal to nu। ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। अभी उन्होंने क्या किया, कहा है लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट दे सेड, व्हाट इज द थ्योरम सेज कि इफ, मैंने लिख रही हूं यहाँ पे, इफ गिवन क्या था आपका कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जस्ट नाउ एवरी होमोजेनियस फंक्शन अगर होता है तो उसको हम f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू t रेज टू n इंटू एफ ऑफ स्मॉल एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये याद रखो, एवरी होमोजेनियस फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस वे, एफ ऑफ कैपिटल एक्स वाई टी रेज टू एन स्मॉल एक्स वाई। करेक्ट, इज इट क्लियर? हर एक होमोजेनियस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिया हुआ वही है कि अगर दिया हुआ फंक्शन u, ये आपका अगर होमोजेनियस फंक्शन है कौन से वेरिएबल का, x एंड y का। u होमोजेनियस फंक्शन है कौन से वेरिएबल का, x एंड y। तो आपको प्रूव क्या करना है, x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y इज इक्वल टू n u। n इज डिग्री ऑफ द फंक्शन। तो इस पार्ट में अगर आपको पता है कि ये होमोजेनियस फंक्शन आ गया तो मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम भी नहीं है।
तो मुझे इस टाइप के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। डो यू बाय डो एक्स क्या आएगा, डो यू बाय, सपोज मेरा फंक्शन दिया है एक्स यू इज इक्वल टू साइन एक्स बाय वाई, तो मैं इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करूंगी, मैं डायरेक्टली उसको होमोजेनियस प्रूव कर दूंगी और इस रिजल्ट से डायरेक्ट मुझे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अगर दिया है इफ, अगर एग्जांपल आता है इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स बाय वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डो यू बाय डो एक्स प्लस y डो यू बाय डो वाई। मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं लिखूंगी कि बाय यूलर्स थ्योरम ये ऑलरेडी है LHS इज इक्वल टू जो भी डिग्री आई थी अभी हमारे 0, तो इसका आंसर हो जाता है 0। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? तो अभी हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे क्या? नहीं, डेरिवेटिव्स इसके आगे नहीं, डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम का यूज करके ये वैल्यू मैं लिख सकती हूँ बाय फाइंडिंग द डिग्री ऑफ द, जब मैं डिग्री फाइंड आउट, ये देखो ना अभी इस एग्जांपल में यही एग्जांपल दिया ना मैंने, साइन एक्स बाय वाई, अगर z इज इक्वल टू साइन एक्स बाय वाई है, z या u भी लिख सकते हो, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए x डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी n इंटू यू, बट n की वैल्यू क्या आ गई 0, तो कहना है से इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में है जो मैंने अभी कहा है? मीन्स एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि अभी मैं डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने वाली नहीं हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्ट यूलर्स का यूज करके आई कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल। तो अभी और सिंपल हो गया, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द डिग्री। इसलिए मैंने इतना टाइम पहले डिग्री समझ में समझाया कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। शैल वी गो फॉर द प्रूफ? देखो अभी यहाँ पे सुनो एंड एवरी स्टेप पे पूछो व्हाट एवर नॉट अंडरस्टूड। आपको पता है कोई भी प्रूफ जब आप लिखते हो, कोई भी प्रूफ जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? गिवन। कैन यू टेल मी? अब यहीं पे दिखाती हूँ। हाँ देखो गिवन क्या था, u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, ये दिया है, ये देखो u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। कैन आई राइट, मैं इसे लिख सकती हूँ u इज इक्वल टू f ऑफ कैपिटल XY इज इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ XY वेयर कैपिटल X इज xt कैपिटल Y इज yt। ये कैसे, कहां से लिखा? एनीवन, कहां से लिखा ये? यस, होमोजेनियस फंक्शन। अभी मैंने बताया ना ये डेफिनेशन लिख दी, सिर्फ कुछ नहीं किया। हम यहाँ पे बोल रहे कि फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस जब ये ट्रू रहेगा, तो फंक्शन होमोजेनियस दिया है करके मैं लिख सकती हूँ f ऑफ कैपिटल XY इज इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ XY। करेक्ट। अभी मुझे इसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, LHS RHS फाइंड आउट करनी है, सो दैट पार्ट विल सॉल्व हियर। क्लियर? तो दिया क्या था? u इज अ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन है करके आई कैन राइट u इज इक्वल टू f ऑफ कैपिटल, या u नहीं लिखा तो भी चलेगा, f ऑफ XY इज इक्वल टू t रेज टू n f ऑफ स्मॉल xy। f ऑफ स्मॉल xy मीन्स आपका होता है दिया हुआ फंक्शन। अगर कंफ्यूजन है तो लेट्स नॉट राइट दिस u। ठीक है, करेक्ट। फिर ये कैपिटल X क्या है? ये तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन नोट डाउन की कि कैपिटल X इज xt, कैपिटल Y इज yt। अभी मुझे फाइल क्या प्रूव करना है कि x डो यू बाय डो x, मुझे ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है, x डो यू बाय डो x प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू nu। दिस आई हैव टू प्रूव। अभी मैं कैसे प्रूव करूंगी वो, हाउ टू प्रूव दिस हियर? इसका यूज करके सपोज ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं LHS एंड RHS को अलग अलग डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। Now I am going to write differentiate partially, everything is partially. Differentiate partially LHS only with respect to t। ठीक है, मैं सिर्फ पार्शियली LHS को मैं इसको ही डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे सब लोग नहीं समझ में आया तो वहीं पे क्लियर करना है। f है
कैन आई राइट डो एफ बाय डो टी? अगर मैं एलएचएस को कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कैन आई राइट एलएचएस एज अ डो एफ बाय डो टी? इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, कैन एनीवन टेल मी? अभी तक हमने नहीं लिखा है, बट कैन यू इमेजिन? डो एफ बाय डो टी की क्या? क्योंकि एफ फंक्शन को मैं टी के साथ डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। एफ फंक्शन का टी के साथ डेरिवेटिव होता है डो एफ बाय डो टी। अब ये कैपिटल एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या लिखेंगे? एफ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एफ इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई। याद है ना, कल बताया, कल मैंने ये सब क्लियर किया। एंड एक्स एंड वाई किसका फंक्शन है? x and y is a function of t. ये देखो ना, कैपिटल x is equal to xt, कैपिटल y is equal to yt. So देखो यहाँ पे कैन आई राइट लाइक दिस कि डो f by डो x, but x and y are function of what? t. तो डो x by डो t. Understood this term? Yes. कैपिटल स्मॉल x का भी फंक्शन है, बट मैं डिफरेंशिएट किसके साथ कर रही हूँ? किसके साथ कर रही हूँ? टी के साथ. सो आई टेकन ओनली टी. एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी है, बट मैं तो डिफरेंशिएशन स्मॉल टी के साथ कर रही हूँ ना. कहां से आया एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी? यहां से. वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी? यहां से, यहां से. ठीक है. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ टी को देखूंगी. तो देखो यहाँ पे एफ विथ एक्स, एक्स विथ टी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड विथ थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड विथ थर्ड. तो कैसे लिखोगे? डो एफ बाय डो कैपिटल एक्स, डो कैपिटल एक्स बाय डो टी, प्लस क्या लिखेंगे? एनीवन? डो एफ बाय डो आई वाई बाय डो टी, डो वाई बाय डो टी, बाय डो टी. समझ में आया सबको? ये डो Yes, ma'am. एफ कैसे लिखा? बिकॉज एफ है कैपिटल एक्स वाई का फंक्शन है, एंड कैपिटल एक्स वाई फंक्शन है स्मॉल एक्स एंड टी का. एक्स को क्यों नहीं लिया? बिकॉज मुझे एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना ही नहीं. एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के साथ डिफरेंशिएट मुझे करना ही नहीं है. मुझे डिफरेंशिएट करना था टी के साथ. तो मैंने लिया डो एफ बाय डो टी. लेफ्ट हैंड साइड इस सिर्फ एलएचएस को कर रहे हैं, आरएचएस को पार्टी चल रही है. मैम आवाज नहीं आ रहा मैम, आवाज कट गया मैम, कट गया मैम, कट गया, आवाज कट गया मैम. ये हमें ये मैथ्स लेक्चर चालू है और पार्टी चल रही है. अलग. चलो लेफ्ट हो जा सब. नहीं नहीं, ग्रुप में मैसेज नहीं. नहीं है. अबे क्या स्टोर का क्या? मैम प्रथमेश, आ गए, मैम आ गए, मैम आ गए. यस. हाँ हाँ चलो. लाइट नहीं है, लाइट गए, वाईफाई ये कनेक्शन चला गया था. वाईफाई. चलो. सैड लाइफ, वाईफाई चल. Hello. Yes, we'll continue with the same. हाँ. So dou f by dou x, dou f by dou t. ठीक है. Can you tell me कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? डो एफ बाय डो एक्स की या डो एक्स बाय डो टी की? डो एक्स बाय डो. करेक्ट. डो एक्स बाय डो टी की. एक्स की वैल्यू है एक्स टी, तो डो एक्स बाय डो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स. एक्स. एवरीवन एग्री? कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल एक्स टी है, मैं टी के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड आपका आंसर आएगा एक्स. वैसे ही डो कैपिटल वाई बाय डो टी का आंसर क्या आएगा?
Yes. Y. y because t का डेरिवेटिव हो गया 1. So I'm going to substitute here. यहाँ पे मैं पुट करती हूँ. So dou f by dou capital X as it is and dou x by dou t की वैल्यू x आ गई. कहाँ से? दिया हुआ वैल्यू से. कैपिटल X की वैल्यू थी xt, कैपिटल Y की वैल्यू थी yt, इसलिए मुझे dou y by dou t की भी वैल्यू हो गई. dou f by dou y is into what? y. हो गया ये. ओके तो मुझे dou f by dou t की वैल्यू आ गई x dou f by dou x plus y dou f by dou y. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. एवरीवन गॉट दिस? क्या किया था पहले से देखो. u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. ये दिया है, उन्होंने दिया था करके सिंपली हमने क्या किया डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज करके ये स्टेटमेंट लिख दिया. ठीक है. कैपिटल X की वैल्यू होती है xt कैपिटल. ये एवरी एग्जांपल में आपको लिखना है. फिर मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन को एज इट इज लिया, LHS को सिर्फ डिफरेंशिएट किया. LHS मींस इस LHS को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. ये f हो जाएगा dou f by dou t. RHS इसका xy का डिफरेंशिएशन होगा dou f by dou x एंड dou x by dou t, जो हमने कहां से किया, यहाँ से. बिकॉज यहाँ पे देखो f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y फंक्शन ऑफ स्मॉल xt yt. स्मॉल एक्स वाई को क्यों नहीं कंसिडर किया? बिकॉज मैं टी के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो उसको नहीं देखना है. सिर्फ मैं लूंगी एफ विथ कैपिटल एक्स विथ टी, एफ विथ कैपिटल वाई विथ टी. बट एक्स एंड वाई की वैल्यू थी आपके पास, उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी. टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो दोनों वैल्यू आ गई एक्स एंड वाई, वो सब्सटीट्यूट कर दी. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. एनी डाउट इन द LHS डिफरेंशिएशन? यस. सपोज अभी मुझे सेम इक्वेशन 1 का RHS डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी. ये मैंने क्या किया था, LHS. अभी इस RHS को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है. फिर से फंक्शन तो वही है dou f by dou t, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही आएगी हमारी dou f by dou t. मैं ना y dou f by dou t बिकॉज बोथ इज नथिंग बट f of x y. f ही है ना फंक्शन, RHS को कर रहे बट वो फंक्शन ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम dou f by dou t. कैन यू टेल मी व्हाट इज द राइट हैंड साइड? विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे, तो इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा? t रेस टू n का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t. x रेस टू n का फॉर्मूला तो कहना है n t रेस टू n minus 1. बट f ऑफ xy का इस f ऑफ स्मॉल xy का डेरिवेटिव आएगा क्या विथ रिस्पेक्ट टू t? वो क्या हो गया? यहाँ कैपिटल x एंड y फंक्शन था t का, इसलिए उनका डेरिवेटिव आया इस फॉर्म में. पर स्मॉल xy फंक्शन नहीं है ना t का, तो वो क्या हो गया आपका? कांस्टेंट. करेक्ट. वो क्या हो गया आपका? कांस्टेंट. करेक्ट. वो हो गया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस टर्म? स्मॉल एफ ऑफ क्यों डेरिवेटिव नहीं आया? बिकॉज वो कांस्टेंट है. वो क्या है आपका? कांस्टेंट. करेक्ट. अभी जस्ट फॉर गेटिंग द रिजल्ट आने के लिए एक एडजस्टमेंट करना है. मैं t की वैल्यू 1 पुट करूंगी. आई विल सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 1. अगर मैं लिखती हूं पुट t इज इक्वल टू 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? dou f by dou t की वैल्यू क्या हो जाएगी? dou f by dou t इज इक्वल टू, t की वैल्यू 1 है, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो ये आपको n f of xy हो जाएगा. इज इट लाइक दिस? अगर मैं t की वैल्यू पुट करती हूँ 1, दिस इज जस्ट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. हम t की वैल्यू पुट की 1 कर सकते हैं ना, बिकॉज समटाइम हमें t रेस टू 0 मिलता है डिग्री, तो वो 1 होता है. सो दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू 1 पुट किया. 1 रेस टू एनीथिंग, 1 रेस टू n है, n माइनस 1 है, उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है? 1. तो इसकी वजह से ये आंसर आ गया n f of xy. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3. अभी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऑब्जर्व करो. क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड सेम है,
इक्वेशन 2 एंड 3 अगर आपने ऑब्जर्व किया तो डो एफ बाय डो टी दोनों की एलएचएस सेम है. कैन आई इक्वेट आरएचएस देन? जब एलएचएस होता है तो आरएचएस इज आल्सो इक्वल. तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x डो एफ बाय डो एक्स प्लस y डो एफ बाय डो वाई is equal to n f of xy. Can I write like this? n f of xy. सॉरी, ये हमारा कैपिटल x है. हाँ, कैपिटल x है. ये आपका था कैपिटल y. ठीक है. LHS सेम थी दोनों की, इसलिए मैंने क्या किया, RHS को सेम बना दिया. RHS इसकी लिख दी इक्वल टू इसकी लिख दी. ठीक है. बट कैपिटल एक्स क्या था आपका? कैपिटल एक्स को एनीवन कैन आई रिप्लेस कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स? इन विच केस? कौन से केस में मैं कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स से एंड कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से रिप्लेस कर सकती हूँ? इन T is equal to 1. t इज इक्वल टू 1. मैंने कहा है t इज इक्वल टू 1 है. अगर मैं कहती हूँ कि t इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू 1 लिया तो ये देखो t की वैल्यू 1 पुट करती तो ये x हो जाता है, ये क्या हो जाता है y. तो एज t इज इक्वल टू 1, समझ रहे हैं ना, एज t इज इक्वल टू 1 आई कैन रिप्लेस दिस डो एफ बाय डो एक्स. कैपिटल x को मैं स्मॉल x से रिप्लेस कर सकती हूँ. Why? Because t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है करके वो कैपिटल x की वैल्यू हो जाती है स्मॉल x एंड कैपिटल y की वैल्यू हो जाती है व्हाट? स्मॉल y, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ठीक है. बट हमारा फंक्शन जो है f वो नथिंग बट दिया हुआ फंक्शन है. दिया हुआ फंक्शन है करके ये स्मॉल f ऑफ एक्स वाई को मैं किस लेटर से रिप्लेस कर सकती हूँ? एनीवन? U. U, करेक्ट. x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y बाय u, बिकॉज आपको स्टेटमेंट में ही दिया है u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ द वेरिएबल x एंड y. u ये x एंड y का होमोजेनियस फंक्शन है. तो आइदर u लिखो या f ऑफ एक्स वाई लिखो, दोनों क्या होता है? सेम. दोनों क्या होता है? सेम. इसलिए आपका आंसर आ गया एन यू. देखो यहाँ पे, ये देखो. ठीक है. t इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई, सिर्फ उसको रिप्लेस कर दिया एंड उसी टाइम f को मैंने किससे रिप्लेस किया? u को. क्यों किया? ये देखो यहाँ पे लिखा था u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई to t raised to n f of x y. Now in 1 minute I will explain it all, whole proof. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. किसी को जिस स्टेप पे डाउट है उस स्टेप पे स्टॉप करके आपका डाउट क्लियर करो. u is a homogeneous function of two variables x and y of degree n. वही आपका गिवन था कि since u is a homogeneous function of x and y of degree n, तो आप इसको u इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू टी रेज टू एन एफ ऑफ एक्स वाई अपने मन से नहीं, ये आपका ये डेफिनेशन था, z नहीं लिया है, यहाँ पे लिया है एक्स वाई बिकॉज 3 वेरिएबल का प्रूफ आपको नहीं है, 2 वेरिएबल का ही प्रूफ है करके x एंड y लिया टी रेज टू एन एफ ऑफ एक्स वाई वेयर x इज इक्वल टू एक्स टी वाई टी. ये हो गई आपकी डेफिनेशन. उसके बाद क्या किया? ये u को नहीं लिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिया. ये भी लिख सकते हो, ये भी. सिर्फ उसका LHS कंसीडर किया, LHS को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया. f का डेरिवेटिव होता है डो f बाय डो t. कैपिटल x का हो जाएगा डो f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो f विद x, बट कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x t है तो कैपिटल x है t का फंक्शन है. वो जो डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, डो f बाय डो x, यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर लो. डो x बाय डो t प्लस डो f बाय डो y बाय डो t. एवरीवन अंडरस्टूड दिस स्टेप, दिस वन? ये स्टेप समझ में आई क्या? दिस स्टेप? यस मैम. एक्स टी वाई टी कहाँ से लिखा है? एक्स टी वाई टी कहाँ से लिखा था हमने? इस फिगर से लिखा था, यहाँ से
f is a function of capital XY function of small xt, बट मैं t के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ dou f by dou x, dou x by dou t, dou f by dou y by dou t यही लिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कैपिटल x की वैल्यू xt है तो कैपिटल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हो तो आंसर x आएगा, बिकॉज x कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1। कैपिटल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हो तो t का 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने इसी 1 का RHS लिया, RHS को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो t रेज टू n का तो डेरिवेटिव आएगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे तो n t रेज टू n माइनस। पर स्मॉल f ऑफ xy, ये यहाँ पे xy में t नहीं है, स्मॉल x में t नहीं है, x की वैल्यू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। जब आप इसको RHS को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू t तो आपका f ऑफ xy कांस्टेंट होता है, वो एज इट इज आएगा एंड इसका डेरिवेटिव। ओनली फॉर एडजस्टमेंट हमने t की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t रेज टू n माइनस 1 का आंसर आएगा 1, आपको आंसर मिल जाएगा n f ऑफ xy, dou f by dou t is equal to n f ऑफ xy। अभी मैं इक्वेशन 2 एंड 3 अगर देखती हूँ तो दोनों का LHS dou f by dou t है, dou f by dou t है। LHS सेम है तो आपको पता है हम RHS इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों का RHS इक्वेट करके मुझे ये मिला था। बट मुझे आंसर, मेरा रिजल्ट स्मॉल x में चाहिए, t1 पुट करती हूँ तो कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x हो जाती है, कैपिटल y की स्मॉल y हो जाती है, वो कर दिया। एंड f इज नथिंग बट क्या था आपका स्मॉल u, तो f को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल u से। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल्स। अब ये u आपके एग्जांपल में u भी हो सकता है, z भी हो सकता है, व्हाटएवर, ये नोटेशन चेंज होगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो राइट है। n क्या है, n इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। एनी डाउट इन द प्रूफ, एनी डाउट इन द प्रूफ? तो आगे से डेरिवेटिव करना है क्या, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है क्या अभी एग्जांपल्स में? नहीं। क्या शो करना है, होमोजेनियस शो करना है, मींस डिग्री फाइंड आउट करनी है। बट एग्जाम में हमें एग्जांपल आइडेंटिफाई, अगर आपको होमोजेनियस करके डिग्री फाइंड आउट करते हो तो 1 मिनट में आंसर आता है ना। अदरवाइज डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये एग्जांपल मैं यूलर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर? एनी डाउट इन द प्रूफ? अभी क्लियर करो, किसी को डाउट है? प्रूफ आप खुद को सॉल्व करके देखना है। आई विल सेंड यू टुडे, जो डिस्कशन आज हुआ उतना ही आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप एंड फिर कंप्लीट पीडीएफ क्लासरूम पे आएगा, ठीक है। अभी देखो इसके नीचे मैंने यूलर्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स लिखा है, बट ये जस्ट स्टेटमेंट के लिए, इसका प्रूफ हमें नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है। अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x y z, एक इसमें ऐड कर दो। अगर मैं इसमें एक वेरिएबल ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, प्लस z dou u by dou z। राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, इसका प्रूफ नहीं है 3 वेरिएबल्स का। यहाँ पे क्या कहा है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y z, 4 वेरिएबल है तो अभी r भी ऐड कर सकते हो ना, प्लस r dou u by dou r प्लस t dou u by, जितने वेरिएबल से उतने वेरिएबल से LHS इंक्रीज होगी, बट RHS तो NU ही रहेगा। तो ये सिंपली स्टेटमेंट लिख के दिखाया कि 3 वेरिएबल्स आता है तो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, बट ये आपको नहीं है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कॉरोलरी नंबर 1, कॉरोलरी मींस व्हाट, उसी का रिडक्शन जो यूलर्स थ्योरम प्रूव किया है उससे, उसका यूज करके। हाँ रिमेम्बर, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ यूलर्स थ्योरम का प्रूफ है, कॉरोलरी का प्रूफ नहीं है। रिमेम्बर दिस, कॉरोलरी का प्रूफ नहीं है। कॉरोलरी नंबर 1 लिखिए, इफ z में लिख के दिखा है, z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x square dou 2 z by dou x square, 2xy dou 2 z by dou x dou y plus y square dou 2 z by dou y square is equal to n minus 1 into z। Can you identify कि यूलर्स थ्योरम में और उस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस दिख रहा है? सपोज मैं यूलर्स थ्योरम को z के फॉर्म में लिखती हूँ तो वो क्या आएगा, व्हाट इज z के फॉर्म में, u लिखो z लिखो सेम ही रिजल्ट आएगा।
ओके अगर मैं इसी को लिखती हूँ जेड के फॉर्म में इसी को तो क्या आएगा एक्स डो जेड बाय डो एक्स प्लस आपका ये जेड यू एग्जाम्पल पे डिपेंड है क्या दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये जेड है यू है वी है वैसे चेंज होगा समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम सेइंग तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी एन इंटू यस अगर एन इंटू जेड करेक्ट मैं यू में लिखती हूँ तो एन यू आएगा वी में लिखती हूँ तो एन वी आएगा जेड में लिखती हूँ तो एन जेड आएगा अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूलर्स थ्योरम ठीक है कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें डो जेड बाय डो एक्स का मीनिंग क्या है विच ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर का मीन्स यूलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कौन से ऑर्डर में है फर्स्ट ऑर्डर में आइडेंटिफाई दिस करेक्ट फिर मैंने अभी अभी जो दिखाया आपको क्या कॉरोलरी ये कौन से ऑर्डर में दिख रही है आपको सेकंड ऑर्डर करेक्ट तो अभी क्या याद रखना है तो अभी क्या याद रख राइट हैंड साइड दोनों का अलग है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आई एम आस्किंग यूलर्स थ्योरम में आपका लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑर्डर में बट कॉरोलरी में आपका लेफ्ट हैंड साइड सेकंड ऑर्डर में तो यहां से क्या याद रखना है आपको यहां से क्या याद रखना है अगर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में आता है तो आप क्या यूज करोगे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में पूछा है तो आप क्या यूज करोगे यूलर्स थ्योरम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में आता है तो मैं क्या यूज करूंगी कॉरोलरी वन बोल रही हूँ मैं क्योंकि बाकी कॉरोलरीज भी है अभी मैंने सिर्फ एक ही कॉरोलरी इंट्रोड्यूस की है बिकॉज ऑफ होमोजेनियस फंक्शन के लिए बाकी की कॉरोलरीज नॉन होमोजेनियस फंक्शन के लिए ठीक है आपका अगर दिया लिसन प्रॉपरली दिया हुआ फंक्शन अगर होमोजेनियस आता है मीन्स डिग्री डिफाइन होती है एन की वैल्यू मिलती है और क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में आता है तो मैं यूज करूंगी यूलर्स थ्योरम एंड क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में आता है तो आई विल यूज कॉरोलरी नंबर 1 गॉट दिस अगेन रिमेंबर लिसन और जिनको नहीं समझ में है एंड देन विल स्टॉप जिनको नहीं समझ में है इस सेंटेंस का मीनिंग वो लोग फिर से क्लियर करो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर दिया हुआ फंक्शन आपका होमोजेनियस आता है होमोजेनियस कैसे प्रूव करना है x इज इक्वल टू एक्स टी वाई इज इक्वल टू वाई टी टी की टर्म बाहर लेना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना अगर आपका दिया हुआ फंक्शन होमोजेनियस आता है मीन्स n मिलता है अगर रिजल्ट मीन्स जो भी प्रूव करना है जो भी फाइंड आउट करना है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में पूछा है तो आप यूज करेंगे यूलर्स थ्योरम अगर क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में आता है तो आप क्या यूज करोगे कॉरोलरी नंबर 1 गॉट दिस एवरीवन गॉट दिस समझ में ओके ये देखो अभी इस एग्जांपल में क्या था प्रूव दैट x डू u बाय डू x मींस ये फर्स्ट ऑर्डर में दिख रहा है तो मैंने क्या यूज किया यूलर्स थ्योरम क्या यूज किया वही कहा था मैंने अगर आपका दिया हुआ फंक्शन होमोजेनियस आता है मींस डिग्री डिफाइन होती है इस फंक्शन की डिग्री क्या ये हम बाद में सॉल्व करेंगे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी डिग्री क्या आ गई 0 आता है तो भी होमोजेनियस है डिग्री में भी 0 तो मैं बोल रही हूँ कि यूज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 मींस दिया हुआ फंक्शन होमोजेनियस है यही कह रही थी मैं तो एंड क्वेश्चन किस में है फर्स्ट ऑर्डर में तो डायरेक्ट मैंने क्या यूज किया यूलर्स थ्योरम x डू u बाय डू x y डू u बाय डू y इज इक्वल टू nu n की वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया बट सेम क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन आता है सेकंड ऑर्डर में ये देखो सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन है तो मैं क्या यूज करूंगी कॉरोलरी नंबर 1 एग्जाम्पल्स अभी तक नहीं हुए हमारे हमने सिर्फ आज क्या किया यूलर्स का प्रूफ होमोजेनियस का डेफिनेशन एंड कॉरोलरी नंबर 1 तो मैं सिर्फ आपको यही तक व्हाट्सएप पे भेजूंगी आप प्रॉपरली नोट डाउन करके रखो भाई यहाँ तक भेजूंगी यहाँ तक ठीक है क्लियर वो नोट डाउन करके रखना है आपके नोटबुक में tomorrow we'll start with the examples any doubt up to this everyone any doubt No, ma'am. it's okay so
I already note down the ये मुझे बताओ. I will read the absent numbers. See, roll number 5, 7, 8, 9, 20, 41, 43, 49. Correct?